राज्यसभा के रुकन डॉक्टर नासिर हुसैन को कांग्रेस की सबसे अहम कमेटी CWC मेंबर नामजद किए जाने के बाद कर्नाटक कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की जानिब से आज बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में इनका तहनीती इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें वजीर आला सिद्धरामैया, नायब वजीर आला DK शिव कुमार और साबिक मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद, रियासती वजीर ज़मीर अहमद खान, रहमान खान, रहीम खान, बाबा सिद्दीकी, नसीर अहमद मौजूद रहे। बड़ी तादाद में लोगों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। मुख्तलिफ अजला से यहाँ लोग शरीक रहे। माइनॉरिटीज़ का ये प्रोग्राम था जिसमें तमाम अहम लीडरान नज़र आए। आप देखिए पूरा वीडियो जिसमें तमाम अहम लीडरान के बयानात और उनके खिताब आपको सुनाएंगे। ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹೌದು, ಭಾರತೀಯರು ಹೌದು. ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ರು. ಭಾರತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು? ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು? ಇದೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ. ಈಗ ಭಾರತೀಯರು, ನಾವು ಭಾರತೀಯನೇ. ನಾನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಒಬ್ಬರೇ ಭಾರತೀಯನಾ? ನೀವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರಲ್ವಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ವಾ? ಹೌದಲ್ಲ? ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿ ಹಿಂಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನ, ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು 136 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭದ್ರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾನೂನನ್ನ ಕೈ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳನ್ನ ಹತ್ತಿಕ್ಕತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಹಾಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಂಥವರು, ಒಂದು 10 ಬಾರಿ MLA MP ಆಗಿದ್ದಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂತವರನ್ನ ಹೊಸ ಬೇರನ್ನ, ಯುವಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷನ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾಸಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಬ್ಬ ಬಳ್ಳಾರಿ ಯುವಕನಿಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯವರು, BV ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರು, ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ವೈಟಿ ಆಗಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯತೆ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾನು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೇಕಾದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ವೈಟಿ ಆಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರಂಪರೆ. कि आज जो मौका कांग्रेस पार्टी ने मुझे दी है, जो मौका कांग्रेस पार्टी ने आज हमारे कम्युनिटी को दी है कर्नाटका से, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए मैं हमारे कांग्रेस
पार्टी के सदर जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहतरमा सोनिया गांधी साहिबा और एक फॉर्मर प्रेसिडेंट राहुल गांधी साहब, केसी वेणुगोपाल साहब, रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब और बहुत सारे जो सीनियर लीडरान मिलकर मुझे ये मौका दिए, उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप तमाम लोगों को जैसा पता है, कांग्रेस पार्टी हमेशा इस देश में डेमोक्रेसी की बात की है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, जस्टिस दिलाने की बात की है, हमारे समाज में एक समानता रखने की बात की है, खासकर अक़लियतों को, पिछले वर्गों को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, किसानों को, महिलाओं को एक बराबर का हक देने का बात की है। बहुत सारे लोगों को हम लोग याद करते हैं, बहुत सारे ऐसे पार्टियां हमारे देश में हैं, एमआईएम जैसे, एसडीपीआई जैसे, पीएफआई जैसे, एआईडीएफ जैसे, जो लगातार ये सवाल करते रहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने आखिर मुसलमानों को क्या दिया। मैं लंबी तकरीर करना नहीं चाहूंगा, इतना ही मैं बोलना चाहूंगा, अगर इस देश में 5-6 मुस्लिम चीफ मिनिस्टर हुए वो कांग्रेस पार्टी से हुए। अगर हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट अगर कोई है वो कांग्रेस की मदद से हुए, वाइस प्रेसिडेंट कोई हुए तो कांग्रेस की मदद से हुए। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई मुसलमान बना तो कांग्रेस की मदद से हुआ। अगर कई स्टेट्स में चीफ जस्टिस हुए, यूपीएससी के मेंबरान हुए, अगर यूनियन मिनिस्टर्स हुए, अलग अलग स्टेट में मिनिस्टर्स हुए, एमएलए हुए, एमपीज हुए, तो ज्यादातर कांग्रेस पार्टी से हुए। आज भारतीय जनता पार्टी जो सेंटर में इख्तिदार में है, उनके पास ना तो एक मुसलमान एमपी है, ना ही तो एक एमएलए पूरे देश में मुसलमान उनकी पार्टी से है। तो ऐसे टाइम पे हम लोगों को सोचने की जरूरत है कि हम लोगों को किन ताकतों को आज हम लोगों को मदद करना चाहिए। कि हमारी कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप का सिर्फ एक ही पैगाम है, एक ही पैगाम है, कोई बज़्म हो कोई अंजुमन, कोई बज़्म हो कोई अंजुमन, ये शियार मेरा कदीम है, जहां रोशनी की कमी दिखी वहीं चिराग जला दिया। वो चिराग आप लोगों ने हिंदुस्तान भर के लिए टिमटिमाते हुए चिराग आपने यहां से हिंदुस्तान को दिखाए हैं। मेरा आपसे इतना ही वायदा है कि वो चिराग आपने जो जलाया है, उस चिराग को लेकर हिंदुस्तान के गोशे गोशे, कोने कोने तक पहुंचेंगे। और जब कोई पूछेगा ये रोशनी कहां से आई है, तो हम कहेंगे जैसे नासिर आए वैसे ही ये रोशनी आई, ये कर्नाटक से आई है, हमारे कर्नाटक के भाइयों और बहनों से आई है। बहुत बहुत शुक्रिया। बस इतना ही आपसे कहना है कि अब मेरी आवाज़ में अपनी आवाज़ जोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को खुश कर दीजिए, ये कहकर कि पूरे हिंदुस्तान में ये यकीन है हमारा कि हम होंगे कामयाब। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿದವರಿಗೆ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಂದು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಈ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು? ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ದಾಂಡಿ ಮಾರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿದ್ರು? ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲಿದ್ರು? ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲಿದ್ರು? ಸೈಮನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ರು? ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲಿದ್ರು? ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಎಲ್ಲಿದ್ರು? ನಮ್ಮ ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲಿದ್ರು? ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೊತೆ 2 ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿದ್ರು? ಚೈನಾ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿದ್ರು? ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ತಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿದ್ರು? ನೀಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ತಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿದ್ರು? ಶ್ವೇತ ಕ್ರಾಂತಿ ತಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿದ್ರು? ಭೂವರ್ಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿದ್ರು? ಇವತ್ತು ಇಂಥವರು ನಮಗೆ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಇವತ್ತು सम्मानित मंच करके अपनी बात 2 मिनट की खत्म करूंगा। इकबाल का एक शेर है, थोड़ी मुश्किल जबान है उसकी, लेकिन सैयद नासिर हुसैन के ऊपर वो बहुत ही माकूल बैठता है। सुखन दिल नवाज जहां पुरसोज, सुखन दिल नवाज जहां पुरसोज, निगाह बुलंद। अगर आपकी निगाह बुलंद है, बात करने का तरीका खूबसूरत है और दिल में कुछ काम करने का जज्बा है, तो निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज जहां पुरसोज,
यही है रख्ते सफर मीरे कारवां के लिए। अगर किसी कारवां के मीर बनना चाहते हो तो इन गुणों का होना, इस तरबियत का होना बहुत जरूरी है। सैयद नासिर हुसैन में ये सारी चीजें मौजूद हैं। मेरा रिश्ता उनसे बहुत पुराना है, जैसा कि मैंने कहा। नेहरू विश्वविद्यालय में जब आप आए, मेरी पीएचडी खत्म हो रही थी, मैं भी वहीं के यूनियन का सदर था, और उस दिन से लेकर आज तक मैंने उनको मुतहर्रक पाया है। हर मामले में, समाजी हो, सियासी हो, तालीमी मैदान हो, हर मैदान में जब कभी भी मुल्क व कौम ने आवाज दी, सैयद नासिर ने लब्बैक कहा। और इसीलिए मैं वो सनद देने के लिए बिहार से आया हूं। जाते जाते उनका काम है वो अहले सियासत जाने, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। हमारा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हमारे कर्नाटक के अध्यक्ष है, कांग्रेस के अध्यक्ष है, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, उन सबको मुबारकबाद देता हूं कि यंग एनर्जेटिक नासिर हुसैन जैसे को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर बनाया। एक और चीज मैं साथ में ऐड करना चाहूंगा कि इनको फिक्र है कि हर राज्य से भी कोई मुस्लिम लीडर आए, और ये फिक्र इंशाअल्लाह ताला आपको और आगे पहुंचाएगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय भीम, अल्लाह हाफिज। आज तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर बाबा सिद्दीकी साहब है, इधर हमारे सलमान खुर्शीदी साहब है। आज तक मेरे हिसाब के अंदर कर्नाटका के अंदर जो 5 गारंटी हमने जो अनाउंस किए थे, और कोई भी स्टेट में देना नामुमकिन है। सिर्फ एक ही स्टेट के अंदर हमारे लीडर सिद्धरामैया साहब जो वादा किया था, जो 5 गारंटी जो दिए। 5 गारंटी मतलब कितना है? 60 पर 5,000 करोड़ रुपए का, यानी सालाना कितना होता है? 60 पर 5,000 करोड़ होता है। यानी 60 पर 5,000 करोड़ के अंदर हमको मुसलमानों को भी, मैं और नसीर साहब, रहमान खान साहब बैठ के उसका एक हिसाब किताब किए, तो हमारी कौम को कितना उसका फायदा पहुंचता? कम से कम 60,000 के अंदर 8 से 10,000 करोड़ रुपए हमारी कौम को भी उसके अंदर फायदा पहुंचता है। यानी ये कि इतिहास है ये सब आप बता के, जो भी है बीजेपी का, जब कांग्रेस हुकूमत में आप ले लो, जब भी चुनाव आता है हमारे प्रोग्राम बता के वोट मांगते हम। हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, हमने ये प्रोग्राम दिया, ये देख के आप हमारे को वोट दो। बीजेपी जैसा नहीं खाली हिंदू मुसलमान जात पात दिखा के, जात पात करके उन लोग के पास कोई डेवलपमेंट वर्क है ही नहीं दिखाने के लिए। डेवलपमेंट कोई वर्क ही नहीं है दिखाने के लिए, खाली हिंदू मुसलमान करके दिखाते। मेरे भाइयों से आज जरा गुजारिश, हमारा देश एक सेक्युलर देश है। हम लोग चाहत मोहब्बत से, हिंदू मुसलमान सब चाहत मोहब्बत से, घर घर हर हिंदू भाई को आप बोलना चाहिए। हमारा मजहब में भी हमारे को सिखाया नहीं कि हमारे को जात पात करना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा इस्लाम ये धर्म दिखाया करके उन लोगों को भी तुम कन्विंस करके आने वाले चुनाव के अंदर आप पूरा तमाम जो पिछली इलेक्शन, असेंबली के इलेक्शन के अंदर जो काम किए, वही इलेक्शन में, पार्लियामेंट इलेक्शन में आप करना करके आपसे आजीना गुजारिश करते हुए दोबारा हमारे नासिर हुसैन साहब को मैं मुबारकबाद देते हुए, आपके ऊपर जवाबदारी बहुत है। खाली आप कर्नाटका के नहीं, पूरे देश के लीडर है। हम भी आपको लीडर मान गए, तो हम आपका भी जवाबदारी ज्यादा हुआ। आप सब, हम लोग सब मिलके हमारे कौम के लिए काम करेंगे करके आए हुए तमाम लीडर का दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हुए मेरी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटका, जय कांग्रेस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। और मंच पर तशरीफ फरमा तमाम लीडरान, क्योंकि मैं वक्त कम है इसलिए मैं हर एक का नाम नहीं ले रहा हूं, माफ करें। मैं मेरी दिल की गहराइयों से डॉक्टर नासिर हुसैन को मुबारकबाद देता हूं कि उनके CWC में आने में। डॉक्टर नासिर हुसैन एक उभरते हुए नौजवान हैं। मैं उनको लगभग 30 साल से, जब से वो दिल्ली आए उस वक्त से मेरा उनके राबिता है, उनका मेरे से राबिता है।
उनके वालिद जो सामने बैठे हैं, हाफिज साहब मेरे दोस्त हैं। जब नासिर हुसैन साहब दिल्ली आ रहे थे तो उनके वालिद ने मुझे फ़ोन किया कि हमारा लड़का दिल्ली आ रहा है, IAS पढ़ने आ रहा है, उसके लिए मदद कीजिए। तो मैं उस ज़माने से इस उभरता हुआ नौजवान को देख रहा हूं। वो स्टूडेंट लीडर से, उसके बाद यूथ कांग्रेस में, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ में, दिल्ली में बहुत ही नुमाइंदा खिदमत अंजाम दिए हैं। अल्लाह ताला हर एक को एक मौका अदा करता है और कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुस्तान में आज तक जमहूरियत को बरकरार रखा है और अक़लियतों के साथ इंसाफ करती आ रही है। अगर जमहूरियत उसी का नाम है जो हर सेक्शंस को नुमाइंदगी देना चाहिए और वो कांग्रेस पार्टी ही है जो नुमाइंदगी देती रहेगी। सर, CWC के जो है नासिर हुसैन साहब को मेंबर बनाए गए, क्या जो है आपके तासुरात हैं? एक अजीम प्रोग्राम भी मुनक़्क़िद किया गया है। देखिए, आज मैं उनको मुबारकबाद देने आया हूँ। कांग्रेस पार्टी के वर्किंग कमेटी के मेंबर बने हैं, एक ऐसे वक्त पे बने हैं जो कांग्रेस पार्टी को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाना इस मुल्क के लिए मुफीद है। इस मुल्क की एकता, एकजहती के लिए कांग्रेस पार्टी वापस इक़्तिदार में आए, ये कोशिश करना आज हम सब का फ़र्ज़ है। तो ऐसे वक्त पर नासिर हुसैन साहब को ये मौका मिला है तो हमें सब खुशी है और ये खुशी का इजहार करने के लिए प्रोग्राम भी रखा गया है। हम सब यहाँ मुबारकबाद देने के लिए आए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज नासिर हुसैन साहब के एजाज़ में जो फंक्शन रखा गया है, माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त फंक्शन रहा। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, माइनॉरिटीज़ के लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सोनिया जी, राहुल जी, सिद्धरामैया साहब, DK सर और तमाम बड़े लीडरों का शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने एक सही आदमी को सही पोस्ट दिया है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जिस तरह उन्होंने पिछला अपना काम किए हैं अपने पोस्ट के हिसाब से, आइंदा भी उन्होंने जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। तमाम का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। साहब का एक एजाज़ी प्रोग्राम किया गया है, CWC का उनको जो मेंबर बनाया। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ पूरे हमारे कर्नाटक की जनता को, जो हमारे नासिर हुसैन CWC के जो मेंबर बने हैं। ये बहुत बड़ा पोस्ट है कांग्रेस पार्टी में, तो इसके लिए हमारे पूरे समाज के तरफ से, पूरे नौजवानों की तरफ से, सभी माइनॉरिटीज़ के तरफ से, सभी हमारे भाइयों की तरफ से मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज CM सिद्धरामैया जी भी आए थे, डिप्टी CM DK कुमार जी भी आए थे। इस तरह से बहुत से मेहमान आए थे। मैं सभी मेहमान का शुक्रिया अदा करता हूँ। नौजवान साथी नासिर हुसैन को कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाया गया, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे खड़गे साहब को, जो उन्होंने एक मौका दिया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि नासिर हुसैन पार्टी को मजबूत करने में आगे काम करेंगे और आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में इंडिया जीतेगी और राहुल गांधी इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। मैं आज हमारे नासिर हुसैन साहब ऑनरेबल राज्यसभा MP को मैं मुबारक बोलना चाहती हूँ। इट्स अ वेरी वेरी वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी प्राउड दैट आर Kannadiga Huduga, he's a youth person as well, who's always been very supportive even for people like us who newly joined politics, and we are very proud that he's become a CWC member today. And of course we also want to thank and acknowledge for all the entire minority community who has contributed towards the recent Karnataka Assembly elections. हम हर एक हमारे माइनॉरिटी के हमारे भाई बहन को मैं शुक्रिया अदा बोलना चाहती हूँ। उनके सपोर्ट से, उनके दुआ से 3 महीने पहले हमारे कर्नाटका का अभी कांग्रेस का गवर्नमेंट आया है, तो मैं
फिर से मैं सबको मैं शुक्रिया अदा बोलना चाहती हूँ। थैंक यू। मेंबर बना गया, पूरी रियासत से नहीं बल्कि पूरे मुल्क से उनको जो है मुबारकबाद देने के लिए एक एजाजी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। जी फरमाइए सर। मैं आज कांग्रेस पार्टी जनाब नासिर हुसैन साहब को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रुकन बनाते हुए ये फिर से साबित की है कि अक़लियतों की ज़रूरत कांग्रेस के लिए है। हर एतबार से मुसलमान को मौजूदा मरकज़ और पिछली हमारी रियासती हुकूमत में हर मुद्दे से ना लेकर है ना मुसलमान को ख़त्म करने की साजिश चली। आज ये दौर हमारे सामने आया है कि रियासत कर्नाटक के अवाम और ख़ास तौर से मुसलमान भारी अक्सरियत से कांग्रेस के तायीद में खड़ने की वजह से आज नतीजा पर आया है। ये बात ज़रूरी है कि सियासी एतबार से हमें हमारा मुकाम मिलना और बाकायदा चाहे वो ग्राम पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हमारे तादाद को बढ़ाने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी का एक अहम रोल है। एक उम्मीद है, एक नई उगम हमारे सामने है ना ये पैदा हो रही है कि नासिर हुसैन CWC मेंबर होने के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस को ताकतवर बनाने के साथ साथ कौमी सतह पर मुसलमानों को जहां कहीं भी मौका मिल सकता है इनको है ना आगे लाने की है ना भरपूर कोशिश करेंगे। और नासिर हुसैन को बड़े करीब से हमने देखा है और उनका नाता शहर मैसूर के साथ उनके तालीमी दौर से जहाँ जिस जगह भी वो ना अपना काम किए हैं अपने एक लीडरशिप क्वालिटीज़ को है ना बाहर लाए हैं। मैं उनको दिली मुबारकबाद देता हूँ और कौम बेहद एक उम्मीद के साथ है कि सियासी शुरूर मुसलमानों में इससे पहले भी था और इसे और उम्दा तरीके से मौका देने के साथ साथ ये करने की एक जिम्मेदारी है ना नासिर हुसैन उठाएंगे। सर जैसे कि आपने बताया कि रियासत के अंदर जो है अक़लियतों की वजह से जो है यहाँ सरकार बनी, क्या आलमी सरकार जो है अक़लियतों के दम पर बनेगी? अगर बनेगी तो क्या अक़लियतों के हुकूक़ होने चाहिए और क्या जो है हाईकमांड करेगा? देखिए साफ साफ से मैं कह दूँ कि हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 77 साल होने के बावजूद हर कौम उसके साथ एक पेशा लगा है। सिर्फ और सिर्फ मुसलमान कौम ऐसी है कि उनके साथ कोई पेशा नहीं है। तालीमी एतबार से, रोज़गार के एतबार से, घरों के मसलों को लेकर और सही माने में इस मुल्क के बाशिंदे होने की का सबूत बार बार पेश करना पड़ता है। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के साथ रियासत कर्नाटक में ये हमने नौजवान साथी नासिर हुसैन को कांग्रेस वर्किंग कमेटी बना गया, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है खड़गे साहब को कि उन्होंने एक मौका दिया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि नासिर हुसैन पार्टी को मजबूत करने में आगे काम करेंगे और आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में इंडिया जीतेगी और राहुल गांधी इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। सूरत क्या पूरी रियासत से तमाम आए हुए लोगों का मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी कौम के क्रिश्चियन कम्युनिटी के, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जितने भी हमारे वर्कर्स और लीडर्स हैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन तमाम की बदौलत ये प्रोग्राम इतना कामयाब होने में, सक्सेस होने में उन तमाम का हाथ है। लेकिन उसके साथ साथ हमारा मेन मकसद जो है हमारे नासिर हुसैन साहब को जो इतना बड़ा ओहदा दिया गया है उनका शुक्रिया अदा करना था, पार्टी का भी और हमारे लीडरों का भी। और लीडरों को भी ये था कि हमारी कम्युनिटी से 130 पर 2 सीटें जो 30 पर 5 सीटें जो चुन के आए हैं उनको शुक्रिया अदा करने का भी एक मौका फराहम करना था। वो भी तमाम लीडर्स हज़रात अपनी अपनी तकरीरों में हमारी कम्युनिटी का शुक्रिया अदा किए हैं और उम्मीद भी दिलाए हैं कि जब तक हम रहेंगे हम आपका साथ देते रहेंगे और आपके साथ रहेंगे। डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन CWC मेंबर बनने पर आज जो जलसा हुआ है, कर्नाटक के लोगों ने ये चीज़ दिखा दी है कि अगर एक नया नेता पैदा होता है, एक नया लीडर उभर कर आता है तो उनकी ताकत बनकर यहाँ की आवाम ठहर जाती है। आज 10 तारीख सितंबर 2023 ये न्यू फाउंडेशन, न्यू लीडरशिप का फाउंडेशन डे है। मैं समझता हूँ आने वाली पीढ़ी इस एग्ज़ाम्पल को लेकर अपनी सियासत करेगी। मैं हर एक
मुसलमान को, हर एक हमारे माइनॉरिटी लीडर को, हर एक माइनॉरिटी MLAs, MPs और हर एक जो कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, जो वर्कर हैं, उनको मैं मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम रहा ये तारीफ़ काबिल रहा।